Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Syed Shujathullah. Today we are discussing the final part, that is part 2 of external sector of economic survey 2021. Okay, so there is a peak of COVID-19 is going on. So you just try to be safe wherever you are. उठ पटान हरकत मत करो, इधर उधर मत जाओ, सिर्फ घर में बैठो. Okay, that is what you want at this point of time. Okay, so don't become a spreader at all and don't get the infection. ये काम आपको करना है. Let us go ahead. I will become any of my छोटा हो जाऊंगा. Okay, fine. Okay. So this is our slide, and you all know what we have been doing. This is a kind of just like that. I mean, like what I have to say you, a kind of advertisement that I have made. Okay, for my personal growth. So if you are interested to be a part of my Zoom classes, all of these will be conducted under Zoom only, or any other platform which is best based on the strength of the students. This is my WhatsApp or calling number. So if you want any information with regard to economic optional and law optional, okay, more than what is there on this slide, if you want some extra information, you can directly call me. So in any of this course, in both the course, what I'm going to do is paper 1 and paper 2. I'm going to complete that in 20 days. Okay, going to complete that in 20 days because this will give you an idea. आपको एक idea मिल जाता पढ़ना क्या है, क्या chapters है, कौन से topics है. इससे आपको क्या होता बोले तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, you will understand that कौन सी topic आपकी pick up topics हो सकती है. What is that topic that you have to select? So that is why it is very important one should have the overall what understanding of all the syllabus. तो हम पहले जब whenever we start the economic option, जब हम start करेंगे either this one or this one, हम पहले 20 days में पूरा paper 1 paper 2 we are going to finish it off. Then we are going to learn everything in detail. That is a month of 4 to 6 months of course. Every day 1.5 or 2 hours of that will be taken. Monday to Friday you will be having classes. Saturday is the day of revision. Sunday you are going to write the mains answers. Mains answer test will be there and I will be evaluating. So that is all fine and asking you to work on the weak areas and your conceptual clarity, that also I am going to analyze and assess. तो आपको ये सब benefits मिल सकते हैं. ओके और आपको मालूम ही है कौन सा भी ऑप्शनल अगर आप लिए ओके विच इज रिलेटेड टू आवर कोर सब्जेक्ट्स के जो भी ऑप्शन आप लिए ओके आप ज्योग्राफी लो या आप इकोनॉमी लो या आप एनवायरनमेंट लो या आप पॉलिटी लो, आप कुछ भी लो. सो यू नो दैट ये ऑप्शंस में एनी हाउ यूपीएससी प्रीलिम्स विल बी डेफिनेटली कवर्ड, राइट. तो यहाँ पे भी कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस जीएस इकोनॉमी हियर आल्सो सेम. और इकोनॉमिक ऑप्शन में 125 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल गेट every year because that has been, I have not yet uploaded the video why to choose economy, why to choose law option. I have not uploaded that video. Once you know that what kind of how these options are playing a very important role for you to secure around 350 plus. Okay, 350 to plus इसमें आते हैं and around 150 marks you are going to get in GS जनरल स्टडीज में. तो ऑलमोस्ट अराउंड इन दो कोर्सेज से यू कैन एनी ऑफ द ऑप्शन यू चूज यू आर एबल टू स्कोर लाइक 500 मार्क्स. वेरी वेरी ह्यूज मार्क्स. बस उसके बाद सिर्फ 250 मार्क्स लाना है. अराउंड 250 यू हैव टू गेट थ्रू दी कट ऑफ. वो तो ओसी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ. ओके, तो ये है. सो एंड जनरल से एंड हियर लॉ में यूजुअली ethics related topics will be covered and discussed comprehensively. So installments are available. Okay, and this is me and you're going to learn everything from me. This is all for the UPSC aspirants. And for the Telangana State Public Service Commission, I will be starting with the help of Bright Minds IAS. They are sponsoring me. So TS Economy and TS Formation, these two papers I will only personally take. Okay, and 300 marks. So out of 600 marks in Group 2, 300 marks are coming from only these two subjects and I will be dealing it. So you will be at better side. Okay, और ग्रुप 1 के लिए you don't have to worry about it. I will be there anyhow. So ये तो ग्रुप 2, ग्रुप 1, AP economy and Indian economy, UPSC, GS and mains, all that will be covered. All that will be covered. So you can call and we can go ahead. Okay, fine. चलो एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया अभी. You know that in external sector,
Okay, there is one video I have completed. This is a second video. In the first video, I have dealt all of this in detail. Every single thing I have dealt in detail. So you can watch the previous video, the part 1 of external sector. उससे आपको बहुत चीज मालूम हो जाती. उसके बाद में आप part 2 देखना. ये part 2 is a final part. ठीक है. ये सब हम पढ़े हैं. ये सब हम पढ़े हैं. याद रखिए ये बात. ये part 1 external sector में हम पढ़ चुके हैं. Okay. So trade in agricultural products fell less than the world average. तो वर्ल्ड का जो है -5% कम हुआ, हमारा -21% कम हुआ. वो तो अगर 100 kg वी आर एक्सपोर्टिंग तो हमारा ट्रेड 90 वर्ल्ड का एवरेज 95 kg वाज स्टेबलाइज, यहाँ पे रुका हुआ था. हमारा कैसा था 100 kg में लाइक 21% कम हुआ, मतलब 21 kg कम हुआ. तो हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए विथ रिगार्ड टू ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली देखें. इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन मेनी सच थिंग्स. ओके, ये भी हम पढ़े हैं. ओके, so I have also told you that there are some products where India exports more and imports less. Okay, and that is leading to trade balance is favorable. Means there are some products through which our trade balance is favorable. Favorable means what? We are doing more exports and less imports. So in terms of, if you are doing more exports, we will get credit. If you are doing more imports, we will get debit, right? So हमारा credit पैसे आना ज़्यादा है, पैसे देने का कम था, तो हमें हमेशा प्लस में वैल्यू आती. That's why these are the products where we are doing awesome. एंड दीज आर दी प्रोडक्ट्स वेयर वी जनरली डू इन लॉस. हमारा बिजनेस यहाँ पे लॉस में होता है. इट मीन्स व्हाट? एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होते, एक्सपोर्ट कम होते हैं एंड इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं. ये इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं, राइट. और हमारा फेवरेबल ट्रेड बैलेंस इज देयर विद यूएसए से. हम बेटर करते, यूएसए के प्रोडक्ट्स हम कम मंगाते इंडिया में और हम ज़्यादा उनको देते. तो हमारा ट्रेड हमेशा इन यूएसए के साथ पॉजिटिव होता. पैसे अपन ज़्यादा कमाते यूएसए से और हम यूएसए को पैसे हम कम देते. ओके, विद रिगार्ड टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. सो बांग्लादेश से भी हमारा अच्छा ही होता है, पॉजिटिव में होता है, और नेपाल में भी इतना ही होता. और डेफिसिट किस में होता? कंट्रीज किससे हम ज्यादातर इंपोर्ट करते और कम उनको हम एक्सपोर्ट करते. बोल तो हमारा पैसा ज्यादा जा रहा, उनके पास से पैसा कम आ रहा. ओके, सो लाइक दैट वी आर एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड इंपोर्ट्स आर मोर. बिकॉज ऑफ दैट हमारे पैसे हमेशा नेगेटिव में बताता. एट द एंड पैसे नेगेटिव में आते. तो चाइना, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ये 3 जो कंट्री मेंशन किए गए हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये 3 कंट्री से हमारा ट्रेड हमेशा डेफिसिट होता है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शोज ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शोज ट्रेड सरप्लस? जब ट्रेड सरप्लस बोलेंगे तो ये 3 आएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शोज ट्रेड डेफिसिट? ऐसा बोले तो यूएसए, बांग्लादेश एंड नेपाल. Which one of the following countries shows trade surplus? Means ये countries. Okay, ये पूरे हम पढ़े, ये अपन पढ़ लिए. Okay, ये मैं क्वेश्चन डाला so that आप लोगों को थोड़ा बहुत you should be have a revision of it. Which among the following commodities leads to favorable trade balance according to the economic survey 2020 to 2021? Gold, cotton fabric. So we have got 6 products. Okay, तो इसमें हमको क्या मालूम करना है कि ये 6 में से ऐसे कितने प्रोडक्ट्स है. ओके, आउट ऑफ द 6 प्रोडक्ट्स हाउ मेनी प्रोडक्ट्स जनरली गिव अस फेवरेबल ट्रेड? ओके, तो गोल्ड है. गोल्ड देखो, गोल्ड नहीं है, गोल्ड से हमारा अनफेवरेबल ट्रेड होता, सो हम गोल्ड को निकाल दिए. देन कॉटन फैब्रिक में आर बी फेवरेबल? कॉटन फैब्रिक में देखो, कॉटन में भी हम नहीं है. ओके, wherever we are here, so cotton fabrics, right, हम यहाँ पे फेवरेबल है. तो ये एक हो गया अपना, दिस इज वन. इसमें हम अनफेवरेबल है, इसमें हम फेवरेबल है. आयरन एंड स्टील में क्या है अपना हाल? आयरन एंड स्टील में भी हम फेवरेबल है. वेरी गुड, आयरन स्टील में भी फेवरेबल है. दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट वाचिंग दिस, यू शुड आल्सो वॉच दिस वन. देखो यहाँ पे है फेवरेबल. ये लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर वी आर डूइंग गुड. Okay, where we are earning more money from other countries, right? चलो, और ये क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट. अब इसमें हमारा क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट. यहाँ पे देखो अनफेवरेबल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रॉपरली रहना आते. चलो हम फेवरेबल है, वी आर फेवरेबल. सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
यहाँ पे भी टिक मारो, राइट। राइस में क्या है हमारा हाल, व्हाट इज द सिचुएशन विद राइस? सो राइस, वेयर इज राइस? ओके, राइस में हम फेवरेबल है, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो a part of our options. Last one, telecommunication instrument. Telecommunication instrument, ओके हम यहाँ पे डेफिसिट है, अनफेवरेबल ट्रेड है। बोलते हम टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसिस्टर्स रहो, सेमीकंडक्टर्स रहो, ये सब चीज हम लेस एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई हमारे पैसे भी ज्यादा जाते हैं, हमको पैसे कम ही आते हैं। तो ये हो गया अनफेवरेबल, राइट। तो ये अनफेवरेबल हो गया। तो दो गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को निकालना है, सॉरी टेलीकॉम कंपोनेंट्स को निकालना है। So if we remove 1 and 6, 2, 3, 4, 5 is our answer. 2, 3, 4, 5 is our answer. So very beautiful question I have framed for all of you. 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये आंसर है, ऐसा पढ़ना है, this is how you have to study. ये हम पढ़ चुके हैं my dear students, we have already learned about this. Mercantile exports. Okay. POL, a short form, is used in our economic survey, which means P means petroleum, O means oil, L means lubricants. ठीक है, I guess we have to do this, I guess. So total exports of the India's exports, mercantile exports means good exports. What is that? Good exports means what? Visible exports. Visible exports of India amounted to 200.8 billion. Contract हो गए बोलते कम टोटल एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल से लेके, बिकॉज 2020 में मार्च 24 पे लॉकडाउन था, 24 या 25 आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, बट 24-25 में लॉकडाउन हुआ था। सो 2020 के पूरे साल में अप्रैल से लेके दिसंबर तक कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करे, इसके वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स $200 $200 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया। Petroleum, oil and lubricant exports, which constitute about 10 to 15% of the total exports, have contributed negatively to the export performance. इनका तो पॉजिटिव में ही नहीं हुआ, चलो भाई 2018-19 में 100 लीटर अपन पेट्रोल एक्सपोर्ट करें, 2020 में पैंडेमिक की वजह से एटलीस्ट 100 लीटर भी नहीं, तो 100 लीटर से क्या है, नॉट इवन 100 लीटर, इससे हम तो नेगेटिव में चले गए। नेगेटिव में बोलते हम 95, 90, लेस देन 100 लीटर हुआ, लेस देन 100 लीटर हुआ, एटलीस्ट 101 भी नहीं करे, 102 भी नहीं करे, द एक्सपोर्ट्स 101 लीटर भी नहीं करे, 102 लीटर भी नहीं करे, वी हैव एक्चुअली डिक्रीज, हम डिक्रीज कर दिए। ओके, तो नेगेटिव में आ गया, our export of petroleum, oil and lubricants are in negative। याद रखने के चीज है ये सब, remember this point, which one of the following petroleum POL exports contributed positively, ऐसा पूछता, or we can say that the only sector that contributed positively to the total exports is POL। absolutely wrong and blunder, ऐसा तो है ही नहीं, because सर्वे बोल चुका है कि petroleum, oil and lubricants contributes negatively to the exports, fine। और ये क्यों? The fall in POL exports was largely driven by softening of international crude oil prices. International crude oil prices. So price international crude oil में prices कम हो गए। ओके, बोल तो 1 लीटर 60 रुपीस में आने का 1 लीटर 50 रुपए में आ रहा, तो हमारा ओवरऑल अमाउंट कम दिखा, ओके, एक्सपोर्ट कम दिखा, तो ये इसका एक रिलेशन है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ? नेगेटिव क्यों हुआ? नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ व्हाट? prices, this is what the survey has told, कम पैसों में बेचना पड़ा POL को। and non-POL exports, which contribute significantly to the shrinkage of exports, okay, turn positive। okay, quarter 1 में, like quarter 1 बोलते अप्रैल, मई, जून is first quarter, जुलाई, अगस्त, सितंबर is second quarter, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर third quarter, जनवरी, फरवरी, मार्च is fourth quarter, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4। तो एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1 to ends on March 31st, ends on March 31st। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। जो नॉन POL प्रोडक्ट्स है, द प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग नो रिलेशन विद पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक्स रहो, यू कैन से दैट राइस रहो, व्हीट रहो, मिल्क रहो, ये सब चीज, हैंडलूम्स रहो, हैंडीक्राफ्ट रहो, सो ये ऑल ऑफ दीज आर गुड अंडर नॉन POL एक्सपोर्ट्स। तो ये तो एक्चुअली quarter 1 में ओके पॉजिटिव थे, श्रिंकेज ऑफ एक्सपोर्ट्स इन quarter 1 टर्न पॉजिटिव, ओके quarter 1 में पॉजिटिव थे,
एंड हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन Q3। तो इनके वजह से थोड़ा बहुत हमारा एक्सपोर्ट अच्छा गया है। किस कौन से प्रोडक्ट्स की वजह से हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट में पॉजिटिव आया पैसा, थोड़ा बहुत अच्छा पैसा आया, बना सके हम पैसा, दैट इज नॉन POL एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बहुत हमको फायदा होने के वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हुए, इम्प्रूव। क्योंकि POL तो हाथ दे दिए, POL तो हाथ दे दिए, बट इनका तो नेगेटिव में चले गया। और क्यों चलेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो बचाए कौन अपने को, इनोवा बचा, नॉन POL प्रोडक्ट्स। Within non-POL products, agriculture and allied products, drugs and pharmaceuticals, ores and minerals proved resilient and recorded expansion. इनका तो ये तो मजे में थे, I mean like इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। Okay, या पैंडेमिक रहो या नहीं रहो, ये तो चल पड़े। Okay, agriculture, allied, drugs, pharmaceuticals, because you know that India is a hub of pharmaceuticals. We are having n number of pharmaceutical companies, like we are having our own in Telangana, that is Dr. Reddy's का है, Cipla है, Lupin है, Ranbaxy है, भारत बायोटेक है, Sun Pharma है, Novartis है, इतने कंपनी से हमारे पास इंडिया में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के, तो हम तो प्रोड्यूस करके छोटे छोटे देशों को देंगे ही। ओके, तो एक्सपोर्ट और पैंडेमिक में ये सब चाहिए, मल्टीविटामिन, डोलो 650, कॉलपोल। ओके, ये जो है आई डोंट नो मच ऑफ इट, बिकॉज हमारे पास एक हमारे हमारे घर में एक डॉक्टर है, ओके, जिसका नाम है माई मोस्ट रेस्पेक्टेड माई मॉम। तो आधे तो इलाज उन्हें कर देते उनके assumptions से। ओके, फाइन। Agriculture, allied products, drugs and pharmaceuticals, ore and minerals proved resilient and recorded expansion. आपको एक स्टेटमेंट देने के बाद, so non-POL products, okay, contributed positively to the exports. Okay, among the non-POL products, okay, agriculture and allied activities, pharmaceutical, okay, has gone shrinkage and recorded contraction, means wrong. ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ये बिकॉज ये दे रिकॉर्डेड व्हाट एक्सपेंशन, दे फॉट द पैंडेमिक एंड दे वर बेटर विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्टर। वेयर एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हो, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं हो, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट इज इनऑर्गेनिक, राइट। So organic or inorganic chemicals में electronic goods, you know that my pen tab is electronic, you know this mic is electronic, the speakers are electronic, the disco lights electronic, everything is electronic everywhere. Okay, so electronic goods, textile and allied products, textile के जो allied products रहते हैं, button, gundi and all, cufflinks, allied products, engineering products, okay, gems, jewelry, pulled export growth down. ये है हमारे culprits, ये है हमारे culprits. Because of this our export have fallen during the pandemic period, because they did not perform well, they did not perform well. But somehow agriculture and allied exports and drugs and pharmaceutical, ये लोग बचा लिए। तो याद रखिए आप properly, please do remember this point, that you have to remember which of the following has pulled the growth, export growth down, which of the following has pulled the export growth up, ये याद रखना है। So I'm explaining very jovially. It does not mean that you should not study, you should study that, right? अब देखो थोड़ा बहुत, मैं तो डायरेक्ट, you know that I love graphs. Relative contribution in non-POL export, तो भी अभी देखिए आप, एग्रीकल्चर देखो, नॉन POL एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हम किस में करें, 1.4% एग्रीकल्चर में करें। तो ये तो अच्छे से 1.4% एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स ग्रो हुए। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के 1.2%, बिकॉज इट इज इन परसेंटेज पॉइंट्स। ओर्स एंड मिनरल्स में ओके, बट ये पूरा में हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नेगेटिव मीन्स हम उतना खास नहीं कर सके। अप्रैल से नवंबर, अगर अप्रैल से नवंबर का हम पूरा डेटा लिए, इन पूरों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखे, ओके, सो हम इन पूरों का, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट ना, तो हम इस एक्सपोर्ट ही देखेंगे। अप्रैल से नवंबर तक का इन पूरों का एक्सपोर्ट्स पहले के ईयर से कम हुआ। 2019-20 से लेके 1920 में जितना एक्सपोर्ट्स आता था, 2021 में कम हुआ। और रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन POL एक्सपोर्ट हैज शोन हाईएस्ट नेगेटिव ग्रोथ during the lockdown or COVID-19 crisis last year, highest negative growth, देखो हमारे gems and jewelry, इसका मतलब the girls out there are not interested to buy gems and jewelry, they are also sitting in home, they are not out to buy any of the bali, chudi and all, necklace, I don't know much about their accessories, तो ये लोग खरीदे नहीं, ये भी लोग culprit है, okay, they would have bought it but they also did not bought, they saw it at home, so ये भी हो गया। So gems and jewelry, and second कौन सा है,
इंजीनियरिंग गुड्स, ये भी कोई लिए नहीं। इंजीनियरिंग बोलते हुए पाना, नट, बोल्ट, ये जो क्या है इंजीनियरिंग में आती है। सो ओके, so remember this point, very very important, don't take it light. So drug formulations, biologicals have consistently registered a positive growth, हम देख लिए वो, and recorded second high largest exported commodity, हम देख लिए। देखो drugs pharmaceuticals second largest exported commodity or not? Yeah. Agriculture allied export recorded the highest export commodity. Yeah. Okay. Highest negative, gems and jewelry. Yeah. Okay. Highest second negative, that is engineering goods. Yeah. Okay. इतनी खूबसूरती से इतने इतने क्या बोलते सो इतने प्यार से कौन पढ़ाता भाई? हम इतना अच्छा करते ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स में। हम इंडिया में लाइक हमारी इंडिया को जनरली वी आर कॉल्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि हम इतने गोलियां बनाते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। Steel is another commodity whose share has increased from 3% to 4% from the last year. However, the pandemic-related disruptions led to a sharp fall in automobile sector. You are aware of this fact. Nirmala madam, automobile sector नीचे गिर रहा है बोल के वो क्या करे, lot of perks and privileges. If you are a proper aspirant of UPSC, you might have known that automobile sector के बारे में बहुत सारा talk था last year. तो आप ये पूरे factual data है, आप याद रखना बहुत जरूरी है। Okay. Top 10 export commodities in April 2020 and April 2019। देखो दोनों के ईयर का कंपैरिजन है। ये जो ऊपर का सर्किल है 2020 का है, अंदर का जो सर्किल है इनर सर्किल 2019 का है। अब देखो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, ब्लू कलर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहले हम 13.5 करते थे परसेंटेज, बिकॉज शेयर इन व्हाट परसेंटेज। अभी हम ये बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कम हुआ, 8.8% ही करें। ड्रग्स फॉर्मुलेशंस 5% करे थे लास्ट ईयर के ऊपर के लास्ट ईयर, बट 2020 में वी हैव डन 7.1 बिकॉज यू नो दैट पैंडेमिक में मल्टीविटामिन टैबलेट्स ये चाहिए वो चाहिए, मास्क चाहिए, सर्जिकल थिंग्स चाहिए, आपको स्टीम चाहिए, आपको ये क्या बोलते हैं ग्रीन कलर की गोली रहती ना, निम्बोली की गोली, बिकॉज टू टेक द स्टीम। तो आप ये सब अननेसेसरी भी खरीद लिए, बिकॉज टू हैव ए मास्क खरीदे, आप बहुत सारी चीजें खरीदे, तो एक्सपोर्ट हो गया। Okay, so it was only 5% before, but because of the pandemic rise, people took lots of precaution and bought lot of things which are a usually we don't buy that things, but still to boost our immune system, so we have bought lot of things, and to keep us safe we have used lot of items which generally we don't do when we are in the pandemic, right? तो इनका इंक्रीज हुआ। तो आप ये चार्ट देख लेना, ये दो पहले दो तो याद रख लो, फर्स्ट एंड सेकंड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीस्ट वाला भी याद रख लो, लीस्ट वाला हमारा कहाँ है, देखो ये मोटर व्हीकल सबसे कम हुआ। लीस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी, लीस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी इज ऑटोमोबाइल्स, प्लीज ये याद रख लेना, ठीक है। लीस्ट और हाईएस्ट हो, टॉप टू तो याद रखना। Which among the following commodities are top exported commodities according to the Economic Survey 2020? Top exported commodity. So pause for a second, okay, and try to do it, and again go ahead with your lecture. ठीक है, I am waiting for your answer. सर आप इतना समझा दिए तो अभी हमको तो मालूम ही हो गया, अब तो क्या कर रहे हैं। पेट्रोलियम एंड ड्रग फार्मा formulations, right? Absolutely right, this is our answer, because petroleum यहाँ पे पढ़ के थक गया अपन, right? We have petroleum, not petroleum, कहाँ पे गया वो, one sorry for that. Top exported, right? So we should have here like petroleum products, okay, and we are having here this one, what is that, drugs format, top तो मेरा सही था, वो अलग था। This is the answer, this is the answer, very good sir। चलो मर्केंटाइल्स इनपुट, अब देखो मर्केंटाइल्स एक्सपोर्ट के बारे में पढ़े हम, पूरा एक्सपोर्ट ही पढ़ते गए अभी तक, बहुत सारे सीख लिए एक्सपोर्ट में। अभी हम क्या क्या चीज बाहर की दुनिया से इंडिया में मंगा रहे, ओके, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। द टोटल इंपोर्ट्स हमारे 258.3 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब देखो भाई बाहर भी एयर ट्रांसपोर्ट हो नहीं सका, और क्या बोलते सो
शिप्स भी चल नहीं सके और रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, अदर कंट्रीज बैंड देयर बॉर्डर्स एक्सेट्रा, तो गुड्स हम मंगा भी नहीं सके, वो भेज भी नहीं सके। सो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंपोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। So import fell to a very good extent of 29.1% import fell हुआ। Well, it means last year 100 apples we were actually importing, okay, and because of pandemic we imported only 70 apples। तो ये तरफ हुआ, इंडिया में 70 apples ही आए, यूजुअली कितने आते हैं, 100 आते। लाइक दैट यू रिमेंबर द imports in our country, okay, contracted to 30%, almost like 29%। The sharp decline in POL imports constitute about a quarter। So POL imports, petroleum, oil and lubricants, इसमें बहुत सारा decline हुआ, sharp decline in POL imports that constitute a quarter of total mercantile imports, pulled down overall import grade। ये POL जैसे कि as you all know that if you are a UPSC aspirant, you know this fact that India has very minimum energy resources, right? हमारे पास कोल के सिवा कुछ है नहीं, और पेट्रोलियम एंड ऑल वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और अब जैसे कि लॉकडाउन में, लॉकडाउन मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड वी कैन नॉट गो आउट, हम वहाँ पे मेट्रो नहीं चला, बसेस नहीं चले, हम खुद भी हमारी कार लेके नहीं गए, किधर भी नहीं गए 4 महीने तक। कितना कम हम यूज करें पेट्रोल डीजल एंड ऑल, राइट? तो हम डिमांड ही नहीं था तो फिर हम लेंगे भी क्या बाहर से। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज, हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका इंपोर्ट डिक्रीज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इट डिक्रीज, एंड it is one of the major reason, it is one of the major reason that overall import growth भी कम हो गया, pull down the overall import growth भी नहीं हो सका because हम बाहर गए ही नहीं, हम पेट्रोलियम यूज करे ही नहीं, इंडस्ट्रीज चले ही नहीं, उनके लिए डीजल भी इंपॉर्टेंट है टू रन द मशीन, तो ये सब हुआ ही नहीं। ओके, but recovery in imports were contributed by accelerating positive growth in gold and silver imports, and narrowing contraction in non-POL, non-gold and silver imports। The statement is very hard, but it is too easy। Okay, अभी हम क्या पढ़े, import में growth decrease हुआ, तो 100 एप्पल आने का 90 एप्पल आए, कम हो गया। Okay, or majority of our imports are concerned with what, POL, okay, petroleum, oil, lubricants, and ये जो imports है, अगर 100% अगर import कर रहे तो this POL constitute one fourth, quarter, इतना ज़्यादा इनका importance है in the imports। खैर because of POL overall import growth कम तो हुआ, but little bit import growth improve भी हुआ because of why, because हम तो gold नहीं छोड़ेंगे, हम गोल्ड या मरते दम तक खरीदेंगे, या पैंडेमिक रहो या नहीं रहो, गोल्ड तुम लव इंडियंस लव गोल्ड, एंड सिल्वर भी इंपोर्ट करें। ओके, और नॉन POL प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रहो या टेलीकॉम प्रोडक्ट्स रहो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स रहो, कॉस्मेटिक्स रहो, ये पूरे हम अच्छे से इंपोर्ट करें। ओके, तो ये जो भी इंपोर्ट ग्रोथ हुआ ये बिकॉज ऑफ गोल्ड, सिल्वर और नॉन POL प्रोडक्ट्स। देखो आपको मैं बोल दिया, नॉन POL प्रोडक्ट्स आर दीज प्रोडक्ट्स। नॉन POL प्रोडक्ट्स ये पूरे क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन POL प्रोडक्ट्स, मींस इन दीज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम, ऑयल और लिब्रिकेंट्स यूज नहीं होते। ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में पेट्रोल कहाँ डालते, एग्रीकल्चर में पेट्रोल कहाँ डालते, सो दीज आर द लाइक मैरिन प्रोडक्ट्स, फिश में पेट्रोल कहाँ से आया, जेम्स में पेट्रोल कहाँ से आया, लाइक दैट। सो दीज आर द नॉन POL एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स है वो। तो हम ये भी मंगाए, कुरकुरे मंगाए, हम कॉर्नफ्लेक्स मंगाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Gold and silver imports constituting about minus 7 to 9% of India's imports. It and obviously it witnessed a 33% growth rate। हम कहीं पे भी रहो, हम तो गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे, एंड वी हैव डन इट। Fertilizers, vegetable, drugs and pharmaceuticals, computer hardware and peripherals, these are all again the examples of non POL products, non gold है and non silver products। Okay, एंड ये पूरे पॉजिटिव है। ओके, ये जो फर्टिलाइजर ज्यादा है अपने इंडिया में, वेजिटेबल ऑयल हम मस्त घर में बैठ के नए नए डिशों का एक्सपेरिमेंट करें कोविड में, तो ऑयल भी मंगा लिए, गोल्ड ड्रॉप, फॉर्चून ऑयल एक्सेट्रा। ड्रग्स एंड ऑल हमें भी चाहिए था, रेमडेसिविर एंड ऑल। ओके, और कंप्यूटर हार्डवेयर मेरे पास पेन टैब कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक की वजह से आया।
तो आपके पास भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आर कमिंग एवरी अदर डे, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, दैट्स व्हाई। तो कंप्यूटर हार्डवेयर भी हम ज्यादा मंगाए। Okay, so all of these contributed to positive growth to the imports, positive growth to the import। खाली एक ही POL, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स ही नेगेटिव ग्रोथ में आए। ओके, नेगेटिवली दे हैव कंट्रीब्यूटेड। ओके, एंड बट ये जो गोल्ड सिल्वर एंड ये जो फर्टिलाइजर्स वेजिटेबल, ये पूरे पॉजिटिव ग्रोथ में आए, ये ग्रो हुए, लास्ट ईयर से अभी ग्रो हुए, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर से ग्रो हुए। एंड कैपिटल गुड्स कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू इट्स वीकनेस। सो कैपिटल गुड्स हम बहुत कम लिए, लाइक मशीनरी हम कम मंगाए, बड़ी बड़ी मशीन हम कम मंगाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चल रहा ही नहीं था, तो बड़े बड़े मशीन मंगा के करना क्या है, बेकार का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। ओके, खाली खाली इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, नहीं करेगा। ओके, व्हाई डू यू टेक Xerox machine, व्हाई डू यू वांट टू ओपन ए Xerox machine shop when education institutions are closed? सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, तो आप तो लेंगे नहीं। तो जितना भी ग्रोथ ये लोग कर सके कर दिए। ओके, ये जो 1 2 3 4 जो भी कर सके ये ग्रोथ कर दिए, बट ये ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत वीकनेस, कबाब में हड्डी कौन था, ये अब कैपिटल गुड्स था, इसके वजह से ग्रोथ ज्यादा तक नहीं चढ़ सका। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, अभी यहाँ पे देख लेंगे रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इन नॉन POL एंड नॉन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स। अभी हम एक्सपोर्ट का देखे थे, देखिए आप लोग, फर्टिलाइजर्स क्रूड मैन्युफैक्चर में पॉजिटिव आया, वेजिटेबल ऑयल में पॉजिटिव आया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पॉजिटिव आया, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स पॉजिटिव आया। देखो ये यहाँ पढ़े नहीं पढ़े आप लोग? ओके, फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल पॉजिटिवली ग्रोथ हुए नहीं हुए? यस, फ्रॉम दी 2019 टू 2020, 18 टू 19 से 19 टू 20 में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, 2019 टू 20 से 2021 में ग्रोथ हुआ इनका। ये देखो कैपिटल गुड्स बहुत कम इंपोर्ट करें, बिकॉज क्यों मंगाएंगे आप मशीनरी जब आपको उस पे काम ही करना नहीं है। ओर एंड मिनरल्स भी हम मंगाए नहीं, वी डिड नॉट इंपोर्ट मच। पर्ल, प्रीस एंड सेमी प्रीशियस, प्रीशियस एंड सेमी जेम्स रहते, जो भी है अनकट डायमंड्स रहते, ये जो, तो आप याद रखिए ये द इंपोर्ट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स सर्वे वाज led by number one fertilizers and crude and manufactured, second one vegetable, led by only fertilizer। देखो इंपोर्ट ग्रोथ सबसे ज्यादा किस में हुआ? फर्टिलाइजर्स, क्रूड एंड मैन्युफैक्चर्ड। properly, very filtered data I am giving to you. If you just open the economic survey, your mind will blow off. Okay, please, it's not exactly, not, I don't want to say that, okay, but still what I'm saying is very precise data I'm giving। okay, बहुत काम लगता है ये सब में। तो अब ये जो एक्सपोर्ट में, द वे वी हैव सीन द एक्सपोर्ट, नो दैट अगेन वी हैव टू सी दी थिंग्स इन इंपोर्ट आल्सो। ओके, इंपोर्ट देखो, in the inner circle is 2019 and outer circle is 2020। so inner circle petroleum products 21% we have imported last year, and decrease हुआ नहीं हुआ? 14.3%। that is what we have learned or not? yes। okay, sharp decline in POL, which pulled import growth, which pulled down the import growth, तो अपने को मालूम हो गया। then petroleum products ये भी कम, okay, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुए, sorry ये तो इंक्रीज हुए, बट ये of all the products, of all the imported products, there is only one product which has shown negative growth, that is what, 14.3, that is petroleum products। बाकी का सब थोड़ा बहुत तो हुआ, देखो 4, 4.6, 2.9, 3.6, okay, and you are having 4.4, 4.8, ये कम हुआ, पर्पल कम हुआ। okay, we have to find out the purple one। अच्छा, उल्टा देखना है ना, राइट, 19 का तो इनर सर्किल 19 है, राइट, फाइन, आउटर सर्किल है, तो ये पर्पल इज व्हाट, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इसका तो ग्रो हुआ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, ये ग्रो हुआ। ये ग्रीन कलर क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स। ओके, इसका थोड़ा कम हुआ। ओके, थोड़ा कम हुआ डज नॉट मीन नेगेटिव में नहीं हुआ, इट कम हुआ। ओके, इन दैट वे यू हैव टू सी। गोल्ड का है हमारा, गोल्ड का ये, ओके, ऑरेंज इज देयर, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, ओके 4.6, ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फॉर डेयरी, मशीनरी, ये जो है कैपिटल गुड्स में आते हैं, कैपिटल गुड्स। मशीनरी कहाँ पे भी वर्ड देखो कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स कम हुए बोल के बोलेगी अपन। वी हैव ऑलरेडी सीन हियर capital goods contributed to the weakness because it has not grown to our expectations, so in the same way आप इस चार्ट को भी इंटरप्रेट कर लो and take out the data, okay, top 10 import sources
top 10 imports. Very important question. Okay, चाइना से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. Nearly about 17.7% of our import share is grabbed by China. Grabbed by China. हम 2020 का ही पढ़ लेंगे बस. Followed by USA. Second, second country which imports, which we get lot of imports from second country. Second highest imports we get from USA. Third highest we get from UAE. Fourth highest we get from Hong Kong. Top 10 में है. Top 10. So you should also remember that which one of the following countries are in top 10 with respect to imports of India. टॉप 10 तो ये देंगे, ये देंगे, यूएसए देंगे, चाइना देंगे, सिंगापुर देंगे, इंडोनेशिया देंगे, इंडोनेशिया अरे सॉरी इंडोनेशिया देंगे, सिंगापुर देंगे और क्या देंगे, जापान देंगे. क्या देंगे? जापान. हम तो समझते कि भाई जापान इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री. Okay, definitely Japan imports lot of goods in our country like that we may think, but wrong. Japan is not there. Japan is not there here. So this is the only country. Three countries. 1, 2, 3 will be the option. A will be 1, 2, 4. B will be 1, 4, 2. 1, 2, 3, 1, 4, 3. C will be 1, 2, 3. So the top 10 countries. Which one of the following are the countries which are in top 10 of imports to India? Means China, USA, UAE. याद रखिए ये सब. Fine. Invisibles. अभी तक हम जितना भी पढ़े वो mercantile related था. Mercantile related था. I hope you got this point. I guess I cannot complete this chapter again. I mean, like it will take a lot of time of my. So I'll just say you thank you, and I will be like sorry for this. I will make a part 3 of external sector. One day will come when I will club, or when the economic service totally complete, I will club all the parts and I'll give you one single video. I don't know editing and all, video editing and all, how to put all the videos and all. So I will find somebody who can do that for me and पैसे लेके या पैसे नहीं लेके. But when slowly पढ़ेंगे. Okay. So thanks a lot, and please share my that advertisement to all of your friends who are interested to be a part of my coaching classes. I'll be more happy to help them out, and at least that will be a kind of remuneration for me. Bye bye. Take care. Have a nice day. Be safe. Good night. Today is May 3. I guess today is. आज क्या दिन है आज? आज मंगल है. हाँ नहीं आज पीर है. Pir is like in Urdu. Pir means Monday. Today is Monday, and April May 3. May 3, 2021. Okay. I will write the things why, because people should know that when I have done it. And अगर ये कोई वीडियो सेव भी कर लिया तो मेरे मरने के बाद somebody should know that May 3, 2020 somebody has recorded. This recording and dating is very important. I guess date लिखना चाहिए हर जगह. Bye bye. Take care.